I am Dr. Shyam Agarwal, Chairman, Department of Medical Oncology at Sir Gangaram Hospital. 4th फरवरी हर साल वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है और इस बार वर्ल्ड कैंसर डे का थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक और ये थीम 2 वर्ष तक रहेगा। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि हर एक कैंसर पेशेंट का एक्सपीरियंस यूनिक होता है क्योंकि हर एक पेशेंट की कैंसर की बीमारी अलग होती है। वो कैसे अलग होती है? क्योंकि कैंसर की जो डिजीज है वो जीन से गवर्न होती है कि उनके सेल्स में जीन्स में म्यूटेशंस या खराबी आने से कैंसर डेवलप होता है। तो अब आपको ये बताना चाहेंगे कि इसको क्या हम समझ सकते हैं और इसमें क्या प्रोग्रेस हुई है कैंसर के इलाज में जीन्स को समझने से। तो आजकल खास तौर पे लंग कैंसर के, ब्रेस्ट कैंसर के, गॉल ब्लैडर, कोलेंजियोकार्सिनोमा, कोलन कैंसर के पेशेंट्स आते हैं तो उनके हम जीन्स के टेस्ट कराते हैं ये देखने के लिए कि कौन से जीन्स खराब हैं और उसके अकॉर्डिंगली उनको यूनिक दवाइयाँ दी जाती हैं जैसे EGFR, ALK, ROS, BRAF, इन सब की अलग अलग दवाइयाँ और हर पेशेंट का इलाज अलग तरीके से होता है जिसको हम प्रिसिशन मेडिसिन बोलते हैं। Cancer is preventable, curable and treatable, and it starts with only one thought that you yourself have to prevent it, you yourself have to treat it and cure it. But it starts with the first thought, that is, क्या कैंसर अपने आप से जानलेवा है या हम उसको जानलेवा बनाते हैं? The answer to the question is cancer can be treated if we detect it early. For early detection of cancer, awareness is the key. How do you spread awareness is by first letting oneself know that some features of cancer could be unique to cancer, but there are most features which are of ill-being in general. कैंसर के कुछ लक्षण इस तरह के होते हैं कि हम उनको बीमारी के तौर पे ले भी नहीं सकते कई बार, क्योंकि आम तौर पे कैंसर बिना दर्द या पेन के होता है, तो we tend to ignore it. So any lump or any lesion, ulcer which is painless and is increasing in size, don't ignore it. Any ulcer in the mouth, oral cavity cancer हमारे देश में बहुत ही कॉमन है जो कि टोबैको से रिलेटेड है, टोबैको च्यूइंग से, स्मोकिंग से, उसको हम हटा सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। सबको मालूम है कि टोबैको कैंसर करता है, उसके बाद भी अगर टोबैको का इस्तेमाल है तो जाहिर है हमने ये तय किया है कि हमें कैंसर होना चाहिए। On this World Cancer Day, let us unite to create awareness about prevention and better treatment options for our patients. Let us remind them to forget what was, remember what is, and have faith in what will be. The patients, their caregivers, and the treating team all have to work together to create a better life and better options for this disease. Let's take a pledge on this day that we will see the patient after a person. Let's unite to create the best possible care for our patients on this day. Thank you. Good afternoon, everyone. 4th February is the World Cancer Day. Now, as a women's doctor, we are very particular about women's cancer. Commonest cancer among women nowadays is breast cancer, followed by cervical cancer, endometrial cancer, and ovarian cancer. How can we make our general population aware about these cancers? How can these be prevented and, of course, treated? Breast cancer, the best treatment or prevention is above the age of 40, you should have annual mammography done, or maybe mammography once every 2 years. WHO has given a slogan of 90-70-90. That means for prevention of cervical cancer. 90% girls should be vaccinated by HPV vaccination between the 9 to 15 years of age. 70% of the women should be screened at least twice in their lifetime for cervical cancer, and 90% patients should be treated with cervical cancer with good treatment. हेलो, वर्ल्ड कैंसर डे के ओकेज़न पे मैं आपको कुछ हेड एंड नेक कैंसर से रिलेटेड रोकथाम और उससे रिलेटेड जो इलाज है उसके बारे में बताता हूँ। हेड एंड नेक कैंसर्स जो मुख्य रूप से होते हैं वो मतलब टोबैको और स्मोकिंग और अल्कोहल से होते हैं। सो हमको इन चीज़ों से दूरी बनानी चाहिए, और साथ में अगर कोई प्रॉब्लम इस तरह की लगती है जैसे कोई नॉन हीलिंग अल्सर है या आवाज़ ख़राब हो रही है या खाने पीने में कोई दिक्कत हो रही है या नेक पे कोई लंप है या थायराइड पे कोई लंप है, तो उसकी तुरंत जांच करानी चाहिए, जिसमें FNAC और बायोप्सी सबसे इम्पॉर्टेंट है। उससे डरना नहीं चाहिए, और अर्ली जो है डिटेक्शन जो है वो कैंसर का सबसे अच्छा इलाज होता है, जिसमें ठीक होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। बायोप्सी से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, बायोप्सी से कैंसर नहीं फैलता है, और इसका इलाज जो है वो ऑपरेशन द्वारा अगर होना है तो ऑपरेशन कराना चाहिए तुरंत, और बाकी जो विधि हैं जैसे सिकाई और दवाई है अगर उसके द्वारा होता है तो
उसके द्वारा कराना चाहिए। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि इसकी रोकथाम करें और अगर ये हो जाए तो इसका इलाज तुरंत कराएं। थैंक यू। Hello. Day in and out, we are seeing a huge surge in the number of cases of cancer. Today, there are approximately 16 to 17 lakh new cancer patients in India as per the last Globocon 2022 data set. We have the most common cancer currently in overall both the sexes being the breast cancer, followed by head and neck cancer, then cervical cancer, then lung cancer, and after that you have esophageal cancer. Now, we don't have any one bullet to say that if you do this you are not going to get cancer, but the main risk factors contribute such as intake of alcohol, intake of smoking, tobacco, less physical activity, obesity. These all have been contributed to increase risk of cancer. Reason for that is जब ऐसी चीजें होती हैं ये बॉडी के अंदर क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी स्टेज को प्रमोट करती हैं, और जब भी ज्यादा इन्फ्लामेशन होती है और बॉडी के अंदर अनचेक रहता है तो कैंसर बनने की क्षमता ज्यादा होती है। तो सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके रिस्क फैक्टर कम करने का कोई भी इनमें से अगर आप कुछ यूज कर रहे हैं तो आप उसको हटाइए और अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करिए। और कोई भी आपको लंप मिलता है बॉडी में या एबनॉर्मल ब्लीडिंग है या कोई भी आपकी बॉडी के अंदर ऐसा चेंज जो पहले नहीं था और आप अब देख रहे हैं, प्लीज आप उसको चेक कराइए, क्योंकि अगर आपने उसको अर्ली स्टेज में कैच कर लिया तो आप जीत सकते हैं। सो यस, if we are able to find cancer in early stage, we can definitely cure a cancer. Thank you. Treatment for childhood cancer is changing. While previously our focus was mainly on chemotherapy, we now have immunotherapy and targeted therapy for many childhood cancers. These drugs come with limited side effects and very added benefits that chemotherapy never had. Many of the relapsed cancers can also be treated with the help of immunotherapy. Some of these drugs are available through access programs like blinatumomab for relapsed ALL. Some of these drugs like nivolumab for relapsed Hodgkin lymphoma have, completely changed the scenario. Many of these diseases, when they relapse, were considered incurable. But now with the help of these newer drugs, we are still having hope and we are able to cure many of these very difficult patients. And we need to watch the space of how this field evolves for childhood cancers. Hello, I'm Dr. Deepika Gupta. I'm a cancer surgeon at Sir Gangaram Hospital. And आज हम बात करेंगे 4th February यानी कि वर्ल्ड कैंसर डे के बारे में। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो नो लॉन्गर इग्नोर नहीं करी जा सकती, बिकॉज दुनिया भर में, हमारे देश भर में कैंसर की संख्या बढ़ती ही जा रही है। चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, मुंह का कैंसर हो, गैनी के कैंसर्स हो, लंग का कैंसर हो, इन सारे कैंसर्स के बढ़ते हुए ट्रेंड को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। 4th फरवरी को हमें ये मौका ज़रूर लेना चाहिए कि हम अपने आप को इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, ताकि आप टाइम रहते स्क्रीनिंग करा सको, कुछ टेस्ट करा सको, जिससे कि ये पता चले कि आपको कोई अर्ली स्टेज का कैंसर तो नहीं है या फिर कैंसर बनने का चांसेस नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा तो नहीं है। सेकेंड आता है प्रिवेंटिव टेस्ट, प्रिवेंटिव मेडिसिन, गुड हेल्दी लाइफस्टाइल। थर्ड आता है कि हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करें। अब बहुत से कैंसर्स का ट्रीटमेंट है, चाहे वो अर्ली स्टेज हो, एडवांस स्टेज हो या लास्ट मेटास्टैटिक स्टेज में भी हो। इन सारे कैंसर्स के ट्रीटमेंट को यूज करने के लिए सम फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। तो इस 4th फरवरी को यूज करिए और कैंसर के कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स को जानिए, स्क्रीनिंग के बारे में जानिए, प्रिवेंशन के बारे में जानिए और ट्रीटमेंट के लिए अपने फ्यूचर को सेफ बनाइए। थैंक यू।